What is up, YouTube? Welcome all back to the channel. So yeah, guys, today it's 12th of January 2024. Happy New Year सगळ्यांसाठी belated. So I have a couple of positions running on TradingView. So it's gonna be first is like USD CHF and second is AUD USD. So these two pairs for the Friday, it was just a boom for me. So I have placed my position. So let's jump onto the TradingView. I will show you the breakdown. So this is USD CHF 4-hour time frame, and this is our trade running. So previous we have two trades, big wins. So this was the big win. It was about 46 pips, I think so. Let me clear the screen. It was 46.9 pips, and the second was 38.3 pips. Two big wins on USD CHF, and this is going to be our third win. So but it's not a win, the trade is still running. So we have a stop loss of 10 pips and my target is about 43.9 pips. So let's jump on the 15 minutes. For the first, I will just tell you why I have my order block over here. So here I got a break of structure. Okay, break of structure over here at this point. So I took order block at this point. Okay, is it clear now? Okay, so this was my break of structure, and this candle, indecision candle, the imbalance candle, was my order block. Also I was having a small fair value gap at this point, so it was a strong signal for me to take that order block. And let's jump on to the 15 minutes time frame. So yeah, this was my break of structure. The trade gone up, came back to order block at this point. Okay, I will just delete this one, it's none of use. So the price came back to our level, fine. And at this point, so guys, here was my break of structure at 15 minutes time frame. The price came back to order block, gave us a change of character. I will just drop down to the 5 minutes time frame so you all guys can see the change of character and everything clearly in depth. So yeah, let's zoom in. So you can see at this point, so this was my change of character. Okay, then at this fair value gap, okay, at this fair value gap, I just entered the trade, and my stop loss was a bit low, 1 and 2 pips below the level of support. Then I placed a trade, and we are right now, I think so, we are running 10 pips, and the trade went up till 20 pips. Never mind, and my target is this high. Let's jump on to the AUD USD, and right now we are on AUD USD 15 minutes time frame. So this is what the particular trade I have running. So I will just break down in depth afterwards. So just I'm explaining the entry model. So this was my POI. Here I got the change of character, break of structure, and back to our POI with the imbalance, with filling and mitigating the imbalance over here. So my stop loss was about 5.6 pips, and I targeted near about, let me show you, I targeted near about 36 pips. Okay, so I will keep you updated on this both of the trades. Till then, stay tuned. Guys, वो जो दो ट्रेड है मेरा अभी चालू है. I'm not sure like we are gonna wait till take profit because it's Friday today. Market बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, किधर भी घूमता है, कुछ भी करता है, उसको जो मन चाहे वो करता है. सो हमको अगर एक सामाउंट काम, हमने जो टारगेट रखा है, द माइंड मनी विच यू कॉल्ड, यहाँ पे तो टारगेट फिक्स है ऑन पीसी, ऑन द ट्रेडिंग व्यू. बट जो माइंड मनी का जो गेम है कि लाइक हाँ इतने पैसे हुए, इतना पिप्स हुआ, वी आर ओके इफ वी क्विट. At that point, we are going to get out. To be sure, I'm not going to wait for the take profit to be hit. Or on 2024, I've just made some changes on the schedule of the plan, like how to plan the day and everything. So I have some different things. I will just show you. So this is my diary for the trading setup. जो भी मतलब मेरा जो breakdown होगा, मतलब आज जो ट्रेड लिया, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्यों लॉस हुआ, क्यों प्रॉफिट हुआ. सो ये मुझे क्या करेगा, जब भी मैं कौन सा भी ट्रेड प्लेस करूँगा सेम सिचुएशन में आएगा. लाइक ट्रेड मतलब लाइक सेम सेटअप मिलते हैं हमको. अगर वो सेम सेटअप में होगा तो पिछले वाला अगर वो प्रॉफिट हुआ तो वो क्यों हुआ था,
और वो लॉस हुआ तो क्या गलती हुई थी हमसे, वो हम चेक करके वी विल ट्राई टू अवॉइड दैट थिंग्स इन द नेक्स्ट ट्रेड. एंड दिस वन इज़ फॉर द एकेडमी, जो टेनिस की एकेडमी है उनका जो सब कुछ जो हम बोलते हैं लाइक इन एंड आउट मनी, जो भी आता है जाता है मनी, एक्सपेंसेस एंड ऑल ऑफ द कलेक्शंस, वो मैं इसके लिए ये वाली नोटबुक मैंने डाली है. एंड दिस वन आई यूज़ एज माई डेली शेड्यूल. आज रात में प्लान करूँगा कि कल क्या क्या हमको करना है, लाइक टू डू लिस्ट यू कैन से इट एज टू डू लिस्ट. और भाई 2 महीने हो गए बट आई एम ऑन द सेम बुक. एक तो हो गई मेरी वो बिजनेस वाली रीड करके, बट ये वाली जो बुक है ना गाइस, सीरियसली दिस इज़ माइंड ब्लोइंग. ये कोई स्पॉन्सर्ड विंसर्ड नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि 2-3 बार मैंने ये बुक का नाम लिया है. एंड सेकेंड थिंग इट इज़ लाइक बहुत अच्छी बुक है ये, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है. बट यू नो व्हाट, ये ट्रेडिंग सब कुछ हैंडल करना इट्स रिडिकुलस, इट्स नॉट एन ईजी जॉब. सो मुझे टाइम नहीं मिल रहा है ये बुक रीड करने के लिए. बट अगर आपके पास टाइम है सो प्लीज़ गो विद दिस, इट्स रियली नाइस. एंड सेकेंड थिंग अपडेट डेक्स पे है. ये जो मैंने परफ्यूम लाया था बहुत प्यारा परफ्यूम था, ह्यूगो बॉस करके, ह्यूगो बॉस. एंड ये ख़त्म होने को आया, यू कैन चेक, इतना ही बचा है. सो वी नीड टू गेट समथिंग न्यू. सो विल जस्ट सी क्या है अभी मार्केट में ट्रेंडिंग अच्छा, तो वो ले लेंगे. टिल देन स्टे ट्यून, आई विल कीप यू अपडेटेड. सो अभी तो मुझे रेडी होके, लाइक इट्स आफ्टरनून राइट नाउ, इट्स आई थिंक सो, लेट मी टेल यू, इट्स 3 o'clock. So never mind guys, so I have some couple of works, I will just do that and after that we have to go on stadium. So बाद में आपको स्टेडियम पे मैं अपडेट दूंगा ट्रेड का. So yeah guys, let's see you there. कर चल, फिटनेस कर. अजून 15 मिनटं बर्फीच कर. चल फास्ट, पटपट आवर. काय स्कोर आहे? ओके. गाइस गुड मॉर्निंग, इट्स द नेक्स्ट डे. क्योंकि कल रात को भाई सब बहुत लेट हो गया पूरी मीटिंग्स वगैरह सब एंड करने में, लाइक इट वॉज अराउंड 12:30, 1 बज गया था. सो नेवर माइंड गाइस. और मैं जो पोस्ट ब्रेकडाउन में आपको जो देने वाला था मार्केट का, वो मैं आने के बाद मैं अभी जा रहा हूँ बाहर फ्रेंड्स के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए. सो मैं सीधा ब्रेकफास्ट के बाद मैं आपको ट्रेडिंग सेटअप पे लेके जाऊँगा, पूरा ब्रेकडाउन इन डिटेल, जो भी वीक में हमने जितने भी ट्रेड्स लिए हैं, क्या स्ट्रेटेजी लगाई है, क्यों लिया, ये सब इन डिटेल ब्रेकडाउन. लॉन्ग वीडियो होने वाला है ये गाइस, सो डोंट स्किप दिस वीडियो, प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सी यू इन सम व्हाइल. हाय का क्या पर है? सो hey guys, वेलकम बैक ऑन द सेटअप. सो ये थे हमारे ट्रेड्स. सो फॉर द फर्स्ट आई विल जस्ट शो यू ऑन द FX माफिया ट्रेडिंग ग्रुप, हमारा प्री और पोस्ट का स्क्रीनशॉट. सो यहाँ पर है USD CHF. ओके, ये था हमारा फर्स्ट एंट्री. एंड यहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट हिट. एंड दिस इज़ आवर सेकेंड एंट्री ऑन GBP USD. एंड ये हमारा टेक प्रॉफिट हिट. ओके, सो यहाँ इस प्री और पोस्ट को तो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया है अभी. सो लेट्स गो ऑन द ट्रेडिंग व्यू, पूरा ब्रेकडाउन करेंगे. USD CHF पहले लेंगे, 4 आवर का टाइम फ्रेम चल रहा है अभी. ओके, सो पहले क्या हुआ था, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था. ओके, ये वाला रिसेंट आया था जो कि 10th जनवरी 2024 में 11:30 बजे का एक हाई है, जो कि मार्केट ने 11th जनवरी को मार्केट ने ब्रेक किया है. ओके, सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है. यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद नीचे वाले एक ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होता है. फाइन, ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक. और
ऑर्डर ब्लॉक है ये। देन ये ऑर्डर ब्लॉक होने के बाद हम सीधा चलेंगे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, जो कि हमारा एंट्री का टाइम फ्रेम होता है हमारा। सो 15 मिनट्स पे आने के बाद एफवीजी फेयर वैल्यू गैप जो है, ये कॉन्सेप्ट थोड़े नए रहेंगे कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों को एसएमसी मालूम होगा, तो इट वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड दिस ब्रेकडाउन। बट जो लोग लाइक सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट पैटर्न्स पे, जो कैंडलस्टिक्स पे जो ट्रेडिंग करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, उन सब के लिए ये कॉन्सेप्ट पूरा नया है। सो थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा तकलीफ होगी, बट नेवर माइंड। फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे। सो फेयर वैल्यू गैप के बाद हमको मिलाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, मतलब ये जो डाउनफॉल है, यहाँ से सीधा जो मार्केट नीचे शॉर्ट हुआ था, शॉर्ट होने के बाद एक अप मूवमेंट मिले हमको 3 कैंडल्स बुलिश, ओके, विथ एडिंग ऑफ द फेयर वैल्यू गैप एंड अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, सो ये हो गया। और इसके बाद जब मार्केट रिटेस्ट होने को आया फेयर वैल्यू गैप को, इसके 15 मिनट के, जब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद, तब हमारी यहाँ पे फर्स्ट एंट्री थी, टेकिंग स्टॉप लॉस ऑफ अबाउट 10 पिप्स एंड माई टारगेट वॉज TP3 था मेरा 34.7 पिप्स का, मतलब 1:3.47 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो था। अच्छा था रिस्क रिवॉर्ड रेशो, बट ये एक पिप्स भी नीचे लॉस में नहीं आया था गाइस, एक जस्ट 1 पिप्स भी पूरा आया नहीं था। जहाँ से एंट्री लिया हमने वहाँ से सीधा टेक प्रॉफिट लिया था। सो यहाँ पे हुआ क्या था, लाइक फॉर द फर्स्ट इसने एक मूव दिया हमारे अपवर्ड, टेक प्रॉफिट 1 हमारा हिट किया फॉर द फर्स्ट, फिर नीचे आ गया। ये वाला फेयर वैल्यू गैप, मुझे क्या लगा था कि ये वाला फेयर वैल्यू गैप टेस्ट करेगा, बट फिर भी मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर ही था। इसने आया, ये जो सपोर्ट की लाइन बनाई थी यहाँ पे, ये सपोर्ट की लाइन पे आया, रिटेस्ट किया और फिर से 3 फेयर वैल्यू गैप, बुलिश कैंडल। सो फिर मैंने स्टॉप लॉस मेरा लिया एंट्री लेवल पे। ओके, ब्रेक इवन पे मैंने स्टॉप लॉस लिया, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप की एंट्री थोड़ी सी रिस्की होती है। सो मैंने स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लाया, देन मेरा टेक प्रॉफिट हिट हो गया, देन मैंने स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट 1 पे लाया। ओके, इसको कहते हैं स्टॉप लॉस ट्रेलिंग ब्रो, फाइन। और टेक प्रॉफिट 2 के बाद मेरा हमारा सीधा टेक प्रॉफिट 3 हिट हो गया, 34 पिप्स हमने बैक कर लिए, सॉरी 34 पिप्स हमने बुक कर लिए। एंड उसके बाद सीधा एक फॉल आया जो कि हमारे POI, जहाँ पे हमारी लाइक एंट्री मॉडल की जो हमारी ऑर्डर रहती है, लाइक रिलायबल ऑर्डर, जो हम POI मतलब 15 मिनट्स के ऑर्डर ब्लॉक पे जो हम लेते हैं, वहाँ पे सीधा मार्केट आया। सेकंड ऑर्डर हमने वहाँ पे भी प्लेस कर दी, जबकि मार्केट इतना बड़ा शॉर्ट हुआ था, यहाँ से इतना शॉर्ट हुआ था, फिर भी हमने इस पॉइंट पे बाई की ऑर्डर क्यों प्लेस की, क्योंकि यहाँ से मूवमेंट शुरू हो गई थी ऊपर। कहाँ से, ये वाले पॉइंट से मूवमेंट ऊपर शुरू हो गई थी, बुलिश मूवमेंट। सो व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग, लाइक एट द सेम पॉइंट वी वांट अ बुलिश मूवमेंट, और हमको बुलिश मूवमेंट मिल गई वहाँ से। एंड सीधा हमारा 38.6 पिप्स का हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो गया, और ये यहाँ पे था फेयर वैल्यू गैप। ओके, इंड्यूसमेंट था यहाँ पे। सो हमने यहाँ पर ही हमारा ट्रेड एंड कर दिया था 38 + 34 पिप्स। ऐसे 2 ट्रेड हमने USD CHF पे हमने बुक कर दिए थे, और इसके बाद सीधा मार्केट रिटेस्ट होने को आया था नीचे, बट वी आर आउट ऑफ द मार्केट। ये 2 ट्रेड लिए थे USD CHF पे, और साइमल्टेनियसली ऑन GBP USD पर हमारा ट्रेड चल रहा था। सो लेट्स गो ऑन GBP USD फॉर अ टाइम फ्रेम। आई एम सॉरी फॉर। सो यहाँ पे मिला हमको चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ से पूरा अपवर्ड मूवमेंट था, यू कैन चेक मार्केट पूरा अप रनिंग था, और यहाँ से ड्रॉप डाउन हुआ। ओके, ड्रॉप डाउन हुआ मतलब क्या, हमको चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, बुलिश से बेरिश को शिफ्ट हो गया मार्केट स्ट्रक्चर, फाइन। सो यहाँ पे शिफ्ट हो गया एंड प्राइस केम बैक टू और फेयर वैल्यू गैप। ओके, यहाँ पे था फेयर वैल्यू गैप। सो उसके बाद हम 15 मिनट्स पे आ गए। 15 मिनट्स पे आने के बाद हमने क्या देखा, मार्केट फेयर वैल्यू गैप पे आया फिर से। ओके, एंड इसके आने के बाद हमको मिला यहाँ पे ये वाला था चेंज ऑफ कैरेक्टर। जैसे हमने पिछले वाले एग्जांपल को बाइंग के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर सिलेक्ट किया था, ये बाइंग का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मतलब ये वाला हो गया था हमारा POI, फाइन, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट विच यू कॉल इट एज ऑर्डर ब्लॉक ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। सो यहाँ पे था मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर। यू कैन ऑल्सो टेक दिस वन, ओके, दिस वन इज ऑल्सो वैलिड। ये था हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, POI यहाँ पे हो गया फिर, और POI होने के बाद सीधा मार्केट ऊपर आया हमारे POI तक। हमारे एंट्री प्लेस 11.1 पिप्स का मेरा स्टॉप लॉस था, और मेरा टेक प्रॉफिट था 45 पिप्स। ओके, 1:4 का रेशो हमने यहाँ पे बुक कर दिया था भाई। यहाँ से सीधा हमारा टेक प्रॉफिट यहाँ पे था, इंड्यूसमेंट फेयर वैल्यू गैप था,
क्योंकि यहाँ से मार्केट रिटेस्ट होने वाला था ऊपर, और उसके पहले हमने ट्रेड हमारा एंड कर दिया। जैसे मुझे 1 मिनट पे लाइक रिजेक्शन मिल गया था यहाँ पे, आई विल शो यू इस पॉइंट पे मैंने क्यों ट्रेड एंड किया, आई विल शो यू। ओके, सो ये देखो गाइस, यहाँ से बिग फॉल आया था। जब भी ये बिग फॉल आएगा ना तब रिटेस्टमेंट होती है, और ये बिग फॉल मिला मुझे जैसे ही ये 1-2 कैंडल मुझे ऊपर दिखी ना जाने के बाद, यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर होने लगा था। आवाज आउट ऑफ द मार्केट, मुझे पता था एक बड़ा रिट्रेसमेंट आने वाला है और मार्केट में हम स्टॉक होने वाले हैं वीकेंड के लिए। सो मुझे मार्केट से बाहर आना था, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने देखा होगा 1 मिनट पे सो एक बहुत बड़ी बुलिश कैंडल थी, और यहाँ से भी, और इसी पॉइंट पे हमने ट्रेड एंड किया था, क्योंकि यहाँ से भी एक बुलिश मोमेंटम वी वर एक्सपेक्टिंग कि बुलिश मोमेंटम हो सकती है। सो फॉर सेफर साइड आई वाज आउट ऑफ द मार्केट एंड दैट वाज राइट। सो ये थे 3 ट्रेड जो हमने लास्ट वीक प्लान किए थे, बहुत बढ़िया थे ट्रेड। अगर आपको ऐसे ही मतलब ट्रेडिंग सेटअप चाहिए, प्री का पोस्ट का स्क्रीनशॉट जो आपका देखना है कि मैं क्या लेता हूँ, क्या ट्रेड्स लेता हूँ, तो आप मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। सो या गाइस प्लीज़ ज्वाइन द ग्रुप और हमारी कम्युनिटी के साथ ज्वाइन कर लो। बाकी तो सब आपको मिल ही जाएगा, लाइक जो कि फ्री कोर्स है, जो कि फ्री का लाइक स्टडी मटेरियल होगा वो आपको सब कुछ मिल जाएगा। एनीवेज गाइस, अगर आपको ये फुल स्टैक SMC कोर्स बेसिक प्लस एडवांस आपको अगर सीखना है तो आप मुझे DM कर दो टेलीग्राम पे, नहीं तो इंस्टा पे, नहीं तो व्हाट्सएप पे, आपको सब जगह अवेलेबल है, सब रिप्लाईज आपको मिल जाएंगे टीम की तरफ से। और आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा पेड जो कि मेरा VIP ग्रुप है, वहाँ पे पूरा आपको बेसिक से एडवांस तक आपको पूरा SMC का जो कॉन्सेप्ट है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, वो आपको सिखाया जाएगा। So guys, if you like this video, please like, share and subscribe to this channel, and don't forget to follow me on my Instagram. So guys, see you in the next vlog.